ना नरेंद्र मोदी एक वीडियो रिलीज करे, उसके बारे में क्या बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो रिलीज किया था स्टेटिंग दैट ही विल ब्रिंग जस्टिस टू दिस कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, अगर ये हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं तो इन्होंने पिछले 2 टर्म से क्या किया? थर्ड टर्म में आने के बाद में जब सब लीक होने के कारण जब सब सड़क पर आ चुके हैं, अब ये कहते हैं कि हमें जस्टिस देंगे। ये वीडियो बना के कहते हैं कि जस्टिस देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो टाइम नहीं था वीडियोस के लिए, तो इन्होंने वीडियो क्यों बनाया? ये प्रेस रिलीज क्यों नहीं देते हैं? मेरा कोई भी ऐसा संबंध नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, किसी का भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कोई संबंध नहीं है। बीट बीजेपी, बीट बीआरएस, बीट कांग्रेस, वी आर हियर टू गेट जस्टिस। वी आर हियर टू गेट जस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज विदाउट द यूथ द कंट्री इज नथिंग. Education and healthcare are the 2 main pillars. If these 2 are not taken care of, our youth will not be able to progress. Our nation will not be able to progress. यूथ के पीछे कोई तो पाकिस्तानी एजेंट्स है, चाइना एजेंट्स है, इसलिए ये पूरे यूथ पूरा इतना हल्ला मचा रहे बोल के भी बोल रहे ना। अगर हम एंटी नेशनल होते, अगर हम टेररिस्ट होते, तो होम मिनिस्टर जी क्या कर रहे हैं? उनका भी इस्तीफा मांग ले हम। वी आर नॉट टेररिस्ट और एंटी नेशनल्स। फर्स्ट आप सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट बताइए कौन सा है, उसके बाद में हम वो भी प्रूव कर देंगे। द ओनली थिंग दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पर्सन हु इज born in India will be called Indian citizen. Then how are you calling us anti-nationals and terrorists? With what right do you call us anti-nationals and terrorists? You are public servants. You have gotten the power from our vote, and you take our money and cheat us. That is absolutely wrong. For the past 7-8 years, our Mr. Dharmendra Pradhan has been the education minister of our country. I want to ask, what has he done? And the students who are protesting at Jantar Mantar, they have unhidden agenda behind them. So they are giving the slogans of anti-Hindu slogans like Allahu Akbar. And why they are saying that Inqilab Zindabad. So like these are the slogans which are using by youth. So they are saying that these are the slogans of anti-Hindu slogans. So what do you want to say? Are we here for protesting for education for the Indians or for Hindus or for Muslims? If Hindus get educated, will Muslims be sidelined or something? We are not here for religion. Please remember, we are not here for religion. We are here for the progress of our nation. Our India is first and foremost secular. If we want to follow the constitution, then our India is a secular, socialist and democratic country. Then how is it that it is anti-Hindu, anti-Muslim and anti-anything of that sort? If we had the money, we would also go and study in the foreign countries like Dharmendra Pradhan's daughter. We do not have the money. That is why we are here protesting for our own country, for our own right. Please support. So what you are thinking? What's the reason behind Dharmendra Pradhan is not resigning yet? It's been a 1.5 month. So Maybe youth the are chair is so comfortable for him to get out of that. okay. There was some news, I do not know from which news channel or news report, but they said that the shuffling of the Council of Ministers, the union ministers will be shuffled, but that has not been done yet. And in the parliament, many opposition party members are protesting, and even they have been taken away. This whole agenda is becoming political. Our whole agenda was to bring justice for our education system, but if it becomes political, we will be called anti-nationals and terrorists once again. So what do you want to say that now in Delhi there is a National Security Act is imposing in Delhi. So what do you want to say on that act? National Security Act, we should be the one imposing because it's our pockets that have been torn off. It's our money that has been gone. Then who should be the one invoking the NSA, us or them? So finally, what do you want to say the people who are watching this? Like still protest should be gone. Still protest should be done. But many people are just they are tagging and they are sharing only. So what do you want to say to the youth? By tagging and sharing only, you're here and we are here. If not, we would not be here only in the first place. So please, yeah, share and tag. We need, maybe Modi ji gets this, and that this beautiful person gets resigned so fastly, so I that am we not can an go. anti-national just because I draw. I have the freedom to draw and I will do so. I don't have any grievances towards a specific political party. Again, I will repeat, we are only here to get justice for our own rights. We have a right to protest and we will do it. సో ప్రధానంగా ప్రొటెస్ట్ లో మనకి చాలా వినిపిస్తున్న స్లోగన్స్ ఇంకిలాబ్ జిందాబాద్ అని చెప్పేసి జై భీమ్ అని చెప్పేసి జై శ్రీరామ్ చెప్పి హల్లో అక్బర్ ఇవన్నీ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో ప్రస్తుతం ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఇంకిలాబ్ జిందాబాద్ అనే ప్లకార్డ్ తో పట్టుకుంటున్నారు. ఒకసారి నేను అడుగుదాం అసలు ఆ మీనింగ్ ఏంది? ఎందుకంటే చాలా మంది బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, చాలా మంది ప్రొటెస్ట్ ని వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఇంకిలాబ్ జిందాబాద్ అనే స్లోగన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని. అసలు దాని మీనింగ్ ఏంది అయినా అడిగి తెలుసుకుందాం. సో భాయ్ ఇంకిలాబ్ जिंदाबाद बोल के आप ये प्लकार्ड पकड़े, इसका मीनिंग क्या है भाई?
इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। सरकार को अब इससे भी प्रॉब्लम है, कहते हैं कि ये जो स्लोगन है इसमें मुस्लिम वर्ड्स हैं, ये हम नहीं सपोर्ट करते, एंटी हिंदू है। रिवॉल्यूशन की कोई भाषा नहीं होती, ये बस हमारी आवाज दबाने के लिए बोला जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। अभी एक जो कल मोदी आपके सब स्टूडेंट्स देशा के युवता के संबंधित से एक वीडियो रिलीज कर, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ट्वीट किया, वीडियो रिलीज किया, 20-25 दिन बाद मोदी जी की नींद खुली है, तब जाके मोदी जी ने ये सब बोला है। और वो भी ऊपर से हमें रेजिग्नेशन चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये जो रूल्स लाने की बात होती है कभी अप्लाई नहीं होती उसके बाद, बस ये ऊपर की बातें हैं। बोल रहे ना देश की युवता बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ये गवर्नमेंट है, उनके लिए गवर्नमेंट है बोल के भी वो वीडियो में बोला। इतना अगर इम्पोर्टेंट होता है यूथ तो इतनी बार पेपर लीक होता है, इतने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद होता है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी एग्जाम में बैठते हैं, हमें पता है कितनी दिक्कत होती है। साल भर पढ़ने के बाद ये एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद कितने लोग का फ्यूचर, कितने लोग की मेहनत बर्बाद होती है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट एक्चुअल स्टूडेंट्स रहकर इनके पीछे पाकिस्तानी एजेंट्स है, चाइना एजेंट्स है, उधर से फंडिंग आ रहा है इनको बोल के भी बोल। कौन फंड करेगा हमें? हमको देख के लगता है हमें किसी ने फंड किया है। हम बस परेशान हैं, हम बस अपनी आवाज यहाँ पे रखने आ रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाने आ रहे हैं। इसमें ये सब गवर्नमेंट का एजेंडा है कि बस ये ताकि ये रिवॉल्यूशन को वो लोग नकार दे कि ये चाइना के एजेंट आए हैं, ये यहाँ के एजेंट आए हैं। कोई एजेंट नहीं है इधर, सब स्टूडेंट है, सब फ्रस्ट्रेटेड है और सब आज इसके अगेंस्ट बोलने आए हैं। रिसेंटली जो 20th को जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उसके बारे में पुलिस लोग की ब्रूटैलिटी अपन देखे, वीडियोस आई, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए तो वो लोग बोला हमारे को टाइम नहीं है सब देखने के लिए। उसके बारे में वो कमेंट्स के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस के पास सिर्फ लेटेंट के वीडियोस देखने का टाइम है, पूरा सीजन 1 सीजन 2 दोनों देख लिया है, पुलिस ब्रूटैलिटी देखने का उनके पास टाइम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड आल्सो रिजाइन। उनका पहला स्टेटमेंट, उनका हर एक स्टेटमेंट इतना इनसेंसिटिव रहा है टुवर्ड स्टूडेंट्स, आज भी इनमें अकल नहीं आई है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी एक जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर के पास, जिधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है उधर एंटी इंडिया स्लोगन्स चल रहे हैं, एंटी हिंदू जैसा इनकलाब जिंदाबाद है कि अल्लाह अकबर वो कहीं को आ रहा, जय श्री राम बोल के ये कहीं को आ रहा। स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना, वही बात करना, लेकिन ये पूरे स्लोगन्स क्यों दे रहे हैं बोल के भी बोल रहे बीजेपी के लोग, क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरे को लग रहा है ये खुद ही बीजेपी वालों के एजेंट्स है जो इस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कौन से दूसरे रिलीजन के, कौन से दूसरी पार्टी के इधर स्लोगन्स चल रहे हैं? इधर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद, वी वांट डेमोक्रेसी, ये चल रहा है। कौन सा रिलीजियस आपने सुन लिया यहाँ पे? मेरा भारत महान चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसमें कहाँ रिलीजियस, इसमें कौन सी पार्टी है? अभी एक दिल्ली में जिधर दिल्ली में पूरा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इम्पोज किया है विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, जस्ट बस ये डाउट आए तो बस उनको अरेस्ट करने की एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाए, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सब बस प्रोटेस्ट को शांत करने की, प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की टेक्निक्स हैं। बस ये लोग चाहते हैं किसी ना किसी बहाने से, बच्चे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स हैं, हम लोग में डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग आए, इधर प्रोटेस्ट में आए, अपनी आवाज उठाए। अगर ये कल आज हम लोग के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है ये सब।